नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 6 में गद्य 6 सुबह जो हमने अगले लेक्चर में देखा था, तो आज जहाँ से अधूरा है वहीं से हम देखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकालें और उनमें पेज नंबर 38 निकाल के रखें। तो हमने आगे के लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि रेशमा जो है अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही है, तो उन्होंने रेशमा ने देखा कि उनका जो छोटा भाई है गोलू, वह पटाखे जला रहा है, फटाकड़ा સળગાવતા હતા। તે ફટાકડામાં એક ફટાકડો ઓલવાયેલો સમજીને એણે ફેંકી દીધો હતો। તો તે ફટાકડાની અંદરથી ચિંગારીઓ સળગતી રહી હતી। તો તેનું ધ્યાન તે ફટાકડા પર રેશમાનું ધ્યાન જાય છે। તો ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું। હવે આપણે આગળ જોઈશું કે ગોલુ કી પીઠ પટાકે કી તરફ थी અને જે સળગેલો ફટાકડો એ હોલવાઈ ગયો એમ કરીને જે ફટાકડો ફેંકી દીધો હતો, એ ફટાકડાની અંદરથી ચિંગારી નીકળવા માંડે છે, આગ નીકળવા માંડે છે। અને એ ફટાકડો ક્યાં હતો? તો ગોલુની પીઠની પાછળ, એના પીઠની પાછળ એ ફટાકડો હતો। રેશમા ચિલ્લાઈ, गोलू गोलू बचो तुम्हारे पीछे पटाखा है। અને રેશમા જોર જોરથી બૂમ પાડવા લાગી કે ગોલુ, તારી પાછળ ફટાકડે જે છે એ સળગેલો છે। એટલે કે ગોલુને જોર જોરથી બૂમ પાડવા લાગે। ફટાકો કે શોર મેં રેશમા કી આવાજ દબ ગઈ। અને ફટાકડાનો જે અવાજ હતો એ અવાજમાં રેશમાનો અવાજ કેવો થઈ ગયો? દબાઈ ગયો। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुँची। बीजा બધા એ વાત સમજી શકે તે પહેલાં તો રેશમાએ શું કર્યું? એની જે ખુરશી છે એને ધકેલતી ધકેલતી જલ્દી જલ્દી ધકેલતી गोलू પાસે પહોંચી જાય છે। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। અને પછી ગોલુને જોરથી ધક્કો માર્યો, અને પીઠ પાછળથી જોરથી ધક્કો માર્યો, અને પછી એની ગાડી જે છે એને જે સાયકલ છે એ આગળ ખુરશી આગળ જતી રહી। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। અને એની જે ખુરશી છે એ ખુરશીનું ગતિ વધી જાય છે, એને ધક્કો મારે છે અને ગતિ વધી જાય તો આગળ જઈને એ અથડાય છે। રેશમા की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। અને રેશમાની જે ખુરશી છે એ ખુરશી ગોલુને સળગવાથી बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। અને ગોલુને સમજ જ નહીં પડી કે આ ધક્કો મને કોણે માર્યો અને કેમ માર્યો। ધમાકે की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी की બહાર દોડે। અને ધડામ દેને જે ધમાકાનો અવાજ આવ્યો એ અવાજ સાંભળીને એમના માતા પિતા બહાર દોડી આવ્યા, ચલે આए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। અને એ ગતિના જે ઝડપથી આવી હતી એ ઝડપને કારણે એની જે ખુરશી છે એની ખુરશીની ગતિ જે છે વધી ગઈ અને એ સામે અથડાઈ ગઈ। એટલે અથડાવાને કારણે રેશમા નીચે પડી ગઈ અને कुर्सी એના ઉપર પડી। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को ऊपर પર બેઠા દિયા। એને એના પિતાજી જે છે એ પિતાજીએ શું કર્યું? ખુરશીને સીધી કરી નાખી અને પછી એના ઉપર રેશમાને બેસાડી। माँ भयभीत थी, बोली कहाँ चोट तो नहीं लगी। અને પછી माँ ગભરાઈ ગયા અને પછી माँ કહેવા લાગી કે ક્યાંક તને નુકસાન તો નહીં થયું ને? ચોટ તો નથી લાગી ને? રેશમાને ઉन्हें सारी बातें बताई। અને રેશમાએ બધી વાત રેશમાને ઉन्हें सारी बातें बताई। અને પછી રેશમા બધી જે વાત છે એ વાત કહે છે। सबने रेशमा की पीठ ठपठपाई। અને પછી બધાએ શું કર્યું? રેશમાને શાબાશી આપી। રેશમા
गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला અને गोलू જે છે રેશમાનો નાનો ભાઈ गोलू એ નાટકીય ધબથી બોલ્યો, દીદી આજ તો આપને મેરી જાન બચા લી. અને પછી શું કહે છે કે દીદી આજે તો તમે મારો જીવ બચાવી લીધો. आप यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. અને શું કહે છે કે જે તમે મને જોરથી ધક્કો માર્યો, જોરદાર ધક્કો હતો, એ મને હંમેશા યાદ રહેશે. સભી લોગ ખિલખિલાકર હસને લગે. અને પછી બધા લોકો ખૂબ જોર જોરથી હસવા લાગે છે, ખડખડાટ રીતે હસવા લાગે છે. रेशमा की शारीरिक कमी उनके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती. અને રેશમાની જે શારીરિક ખામી છે એ તેના इरादाમાં ક્યારેય अड़चनरूप न बनी. वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है. તે આજે પણ એટલી જ જિંદા દિલી અને પોતાના પરિશ્રમથી પોતાનું जीवन જે છે તે વિતાવી રહી છે. उसकी यह हर सुबह नई सुबह होती है और हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जाती है. અને તેની રેશમાની દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે અને નવી સવારે તે દરેક સવાર પોતાના કામમાં નવા સંકલ્પ સાથે જોડાઈ જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પાઠ છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. તો તમારે આ પાકી નોટબુકમાં તમારે આ શબ્દાર્થ જે છે એ શબ્દાર્થ લખવાના છે. આ મુહાવરા અહીંયા આપ્યા છે, એ મુહાવરા બી પાકી નોટમાં લખવાના છે. કે આંખો કા તારા, તો તમને મેં આગળ કીધું છે કે આંખો કા તાર એટલે કે બહુત પ્યાર है. તેનું વાક્ય શું બનશે કે सभी बच्चे अपनी माँ के आँखों के तारे होते हैं. ठीक है. हाथ बताना, मदद करना. तो रेशमा ने अपने माँ को काम में हाथ बटाया. इस तरह से आप वाक्य लिख सके. पीठ थपथपाना, शाबाशी देना. तो रेशमा ने गोलू की जान बचाई, इसलिए सब लोगों ने रेशमा की पीठ थपथपाई. तो आप इस तरह से तीनों वाक्य लिखेंगे. ठीक है. तो मुहावरे और शब्दार्थ दोनों बाकी नोटबुक में आप लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्यौहार था और त्यौहार से पहले घर की साफ सफाई हो जाए, तो इसलिए घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. रेशमा को घर में साफ सफाई में क्यों नहीं लगाया गया था? रेशमा जब 5 वर्ष की थी, उनका उत्तर क्या आएगा? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर के साफ सफाई नहीं दी गई थी. रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उनका उत्तर आएगा कि अलमारी से सारे बर्तन डिब्बे उतार कर साफ किए. और रेशमा ने, उसकी माँ ने क्या किया? अलमारी से सारे डिब्बे और बोतलें उतार कर साफ किए और रेशमा ने उन पर लेबल लगाए. फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. इस प्रकार रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की. माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने थे, तो लड्डू के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी और घर में रेशमा के जो पिता थे वह दफ्तर चले गए थे और गोलू घर में सबसे छोटा था, इसलिए वह नहीं जा सकता था. और दादा दादी बुजुर्ग थे, इसलिए वह भी नहीं जा सकते थे. तो रेशमा ने माँ से कहा कि बाज़ार से सामान मैं ही ले आती हूँ.
तो माँ ने रेशमा को बाजार से सामान लेने के लिए भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। बाद में वह उस पटाखे से चिंगारियाँ निकलने लगी तो एकाएक रेशमा को उस पटाखे पर नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि वह पटाखा जो है वह जल रहा है। तो उन्होंने गोलू को आवाज़ लगाई, लेकिन पटाखे की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई और रेशमा ने कुछ सोचा उससे पहले वह अपनी कुर्सी को धक्का मारते हुए गोलू के पास पहुंची और उनको उस पटाखे से दूर करते हुए धक्का मारा। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न 1 के जो 5 प्रश्न है वहाँ आपको लिखने हैं और रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। ये प्रश्न भी आपको लिखने हैं। नीचे दिए गए घटनाओं को कहानी से क्रम में लिखें। तो आपको यह क्रम में वाक्य लिखने हैं। तो क्रम में कैसे आएगा? तो रेशमा बाजार से सामान लाई, ठीक है। फिर रेशमा का घर दियों से झिलमिलाकर प्रकाश में जगने लगा। रेशमा अपने दोस्तों रेशमा जो गोलू है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फिर आगे माँ ने रेशमा को कहा और सब ने रेशमा के पेट थपथपाए। ठीक है, इस तरह से आप क्रम में लगाएंगे। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, मुहावरा का अर्थ और वाक्य तो आपको मैंने आगे बताया है कि मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आँखों का तारा बहुत प्यारा, हाथ बटाना तो मदद करना, पीठ थपथपाना शाबाशी देना। ठीक है, तो इस तरह आपको ये प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ये चारों प्रश्न आपको पाकी नोटबुक में लिखने हैं। आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।